Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to do what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. So I do not know so much about full moon, that's not my forte, and I do not hold so much information about this area. But one thing I know, that full moon and new moon affects my mood and my emotions and everything. So this full moon, so many things are coming up to be released. And actually, I never understood the meaning of the word that like इंटेलेक्चुअली आप कुछ समझ जाते हो बट आपको एक्चुअली में वो चीज़ समझ नहीं आती, आप उसे एम्बॉडी नहीं कर पाते हो. एंड इट इज़ दैट हाउ अदर पीपल आर विद यू एंड what they think of you and how they talk to you and how they behave with you. It has nothing to do with you, because right now I'm going through something like that only. And a person who used to take everything personally, because being an anxious attachment style, I used to take everything personally, that that अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, अगर किसी ने मुझे घोस्ट कर दिया या फिर अचानक से बात करना बंद कर दिया, तो इट इज़ माई फॉल्ट. एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट how people behave with me and how they react and how they talk to me and how they treat me is my fault, and it has to do with me. And it's all my fault. I'm the one who's doing something wrong. I'm the one जिसने कुछ गलत किया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत बिहेव किया, किसी गलत तरीके से कुछ. I don't know. I always used to blame myself. I always used to blame myself. And for the first time, something happened, and I'm actually not blaming myself the way I used to blame myself. Because, it's not my fault. I cannot dim my light to make anybody feel comfortable, because आई यूज़ टू बी द पर्सन जो कभी कुछ बोलती ही नहीं थी. अगर यू नो टू मेक अदर पीपल फील कंफर्टेबल, टू मेक देम फील दैट कि वो मेरी लाइफ में रहें, मुझसे बात करते रहें और मुझे छोड़ के ना जाए, मेरी फ्रेंडशिप बनी रहे उनके साथ. आई यूज़ टू डिम माई लाइट, एंड मैं कभी भी अपने हर्ट को, अपने पेन को, डिसअपॉइंटमेंट को बता नहीं पाती थी. मैं हमेशा उन्हें सप्रेस कर लेती थी, इस डर से कि अगर मैंने कुछ बोला या फिर मैंने अपना डिसअपॉइंटमेंट ज़ाहिर किया, तो दे आर गोना लीव मी. एंड दे ऑलवेज यूज टू कम एंड टेल मी what they were not comfortable about related to me. But I never was able to tell them कि मुझे क्या चीज़ है जो डिसकम्फर्ट दे रही है, जब तक पानी सर से ऊपर नहीं चला जाता था. एंड दिस यूज टू मेक मी very frustrated, extremely frustrated, sorry. And when you feel कि you're choking, you're not able to speak, you are not able to say anything, and you are not able to just be yourself and speak your truth. आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं. सी आई एम नॉट एक्सपर्ट इमोशनल हीलिंग और इन सब चीज़ों पे, तो आई नॉट टॉक अबाउट दैट. आई एम नॉट दैट. आई जस्ट टॉक अबाउट हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ. So I always used to think that it's my fault and there is something in me, जबकि that's not true. ये मेरा fault नहीं है. It's not my fault and I did not do anything wrong. अगर मैंने कुछ गलत भी किया है, तो
ये सामने वाले को ये हक नहीं देता कि वो मेरे साथ एक्सट्रीमली रूड हो जाए और मेरे साथ कुछ भी बोले और कैसे भी बिहेव करे या फिर घोस्ट कर दे. दैट्स नॉट व्हाट आई डिज़र्व. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लोगों का बिहेवियर, उनका रिएक्शन, उनका एक्शन, वो जैसे बात कर रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, कम इम्पैक्ट कर रहा है. इट्स लाइक समथिंग इन मी इज टेलिंग मी दैट प्रियंका इट्स नॉट योर फॉल्ट. कि नॉट एवरी वन इज़ गोना लाइक यू एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक. अगर आपके कुछ मिस्टेक्स करने से कुछ लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं या फिर ट्रिगर हो रहे हैं या फिर आपसे बात करना बंद कर देते हैं या फिर आपके बारे में बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो those people are not your friends. Those people are not thinking anything about you. Maybe they are so self-absorbed कि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं. So I was just thinking and I just realized कि प्रियंका, just do what your heart really desires and what makes you happy. अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए. एंड अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको गुस्सा फील हो रहा है, अगर तुम्हें हर्ट फील हो रहा है, अगर तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो बोल दो. अगर वो चीज़ बोलने से सामने वाला इंसान आपको छोड़ रहा है या फिर आपसे बात करना बंद कर रहा है, then that person is not for you. Please don't blame yourself because I always used to think कि सामने वाला हल्का सा बस उसने उसे कुछ भी डिस्कम्फर्ट हुआ तो इट्स मी, देयर इज़ अ फॉल्ट इन मी. मुझे उसको खुश रखने की ज़रूरत है, मुझे उसको ऑलवेज हैप्पी रखने की ज़रूरत है, मुझे उसे ऑलवेज प्लीज रखने की ज़रूरत है. बट समवेयर दैट्स नॉट ट्रू. आई कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी. मैं सबको खुश नहीं रख सकती. सो अगर वट आई रियलाइज्ड अगर what I realized is that when you start to upgrade in your life, okay, when you start to rise in your life, okay, people who are not upgrading, people who are not doing anything about themselves, people who are not choosing anything better for themselves, people who are not doing anything good for themselves, okay, वो आपको नीचे खींचने लगते हैं. वो आपको नीचे खींचने लगते हैं, वो आपको आपके बारे में बुरा फील कराने लगते हैं, वो आपको ऐसा छोटा फील कराते हैं जैसे कि कि यू आर नथिंग एंड योर एग्जिस्टेंस इज़ वॉट मेकिंग देम फील अनकम्फर्टेबल एंड योर प्रेजेंस इज़ नॉट गुड फॉर देम बिकॉज दे आर द वन who is not doing anything for themselves. They are not upgrading in their life, they are not changing, they are not believing in themselves. तो जब आप अपग्रेड करने लगते हो ना अपनी लाइफ में, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि दीज पीपल दे स्टार्ट टू गेट सो ट्रिगर्ड कि वो आपको नीचे खींचने लगते हैं, कि वो आपको कैसे ना कैसे करके बुरा फील कराने लगते हैं. आपको वो ऐसा फील कराते हैं जैसे कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ बुरा किया है, जैसे कि यू आर द वन हु इज़ बैड because they are not doing anything for themselves to upgrade themselves. तो वो चाहते हैं कि आप भी ना करें और जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप फिर से सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दें. आप फिर से वो जैसे आप पहले थे आप वैसे फिर से बन जाएं, कि वो आपको वो सारी बुरी बातें बोल सकें, आपको वो छोटा फील करा सकें एंड आपको हर चीज़ पे वो ब्लेम कर सकें, क्योंकि उनको ये करने से अच्छा फील होता है. दे फील गुड कि ओके नाउ फाइनली. So I just wanted to share this today that if you are upgrading in your life, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं,
आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो आपके आसपास लोग हैं, अगर वो ट्रिगर हो रहे हैं, अगर वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज मुझ में ये बहुत प्रॉब्लम है. आई नॉट से कि प्रॉब्लम है, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ नॉट अ राइट वर्ड टू यूज़ फॉर माई सेल्फ. ये मेरा पैटर्न है. दिस यूज टू बी माई पैटर्न, एंड कहीं ना कहीं अभी भी है कि आई जस्ट यूज टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर एवरी थिंग, एंड फिर मैं वापस वो चीज़ें करना स्टार्ट करती थी जिससे उन्हें कंफर्टेबल फील हो. एंड अगर अगर सामने वाला इंसान, इफ दे रियली लव मी, they will support me, they will support my progress, they will support my actions, they will support my choices. This is what I have realized about support and love अभी तक. लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अगर आप अपग्रेड कर रहे हो और वो ट्रिगर हो रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ओके, तो दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू. आई नो इट हर्ट्स एंड अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, एंड दिल भी दुखता है, एंड बहुत हर्ट भी होता है. लेकिन द थिंग इज़, व्हेन यू आर अपग्रेडिंग इन योर लाइफ, व्हेन यू आर व्हेन यू आर चूजिंग बेटर फॉर योर सेल्फ, एंड आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, एंड आपके चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कभी भी थे नहीं. दे वर नॉट फॉर यू. वो मे बी वो आपके उस वर्जन से अटैच थे जो खुद को आगे नहीं रखता था, जो खुद से प्यार नहीं करता था, जो खुद पे बिलीव नहीं करता था, जो अब डिसरिस्पेक्ट के लिए खड़ा नहीं होता था, और खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता था जितना वो अब कर रहा है. वो उसी वर्जन को चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को आगे नहीं रख रहे हो, आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट टू स्टेप अप एंड चूज योर सेल्फ, आई हैव सीन इट इन माई लाइफ. आई हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मी एज वेल. कि they will not like you, they will start to comment badly about you, they will start to talk about you. and अगर आप strong नहीं हैं तो आप इस ट्रैप में फंस जाओगे, बिकॉज मैं हमेशा इस ट्रैप में फंसती रहती थी कि द मोमेंट आई वुड ट्राई टू क्लाइम वन स्टेयर, वैसे ही क्या होता था कि बिकॉज आई हैव दिस फियर कि सब कुछ जो गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, and I need to please that person, I need to make that person feel comfortable in my presence, I need to make that person feel good about me, that person should like me. तो मैं वापस नीचे आती थी एंड फिर से वही सब चीज़ें करना स्टार्ट करती थी जिससे कि वो बंदा मुझे छोड़ के ना जाए, वो इंसान मुझे छोड़ के ना जाए, वो फ्रेंड मुझे छोड़ के ना जाए. बट होता क्या था कि मैं वहीं पे स्टक हूँ फिर, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं जैसे ऊपर जा रही हूँ नीचे वाले सब मुझे छोड़ दे रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे. तो फिर मैं वहीं पे स्टक हूँ, मैं ऊपर बढ़ ही नहीं रही हूँ ना, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ. बट अगर आप अपने अंदर मैंने ये ज्योति मैम से सीखा है, ओके. शी ऑलवेज टोल्ड मी दैट प्रियंका, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव कि व्हेन यू आर चूजिंग योर सेल्फ, if the people around you is falling apart, those people were not for you, those people were for the version जो आपने होल्ड किया हुआ था, वो बस वहीं तक के लिए आपके साथ थे. आगे जब आप लाइफ में बढ़ रहे हो, आगे जब आप लाइफ में जा रहे हो, तो उस वर्जन के लिए वो लोग नहीं हैं. आप हैव फेथ दैट यू विल मीट न्यू फ्रेंड्स, हैव फेथ दैट यू विल मीट न्यू पीपल. Believe in yourself. Okay, so I have learned a lot from her, and I truly respect her because I have seen her growing in her life, and she have done so much for herself, and I love the way she loves herself. I love the way she respects herself without saying anything. I just love it, and she inspires me every day.
एंड जब आपकी लाइफ में जब लाइव एक एग्जाम्पल आपके सामने होता है ना, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आपको चीज़ें और थोड़ी सी इजी लगने लगती हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू हैव द एग्जाम्पल, नाउ इट इज़ पॉसिबल. सो बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू विद द सेम फेज, आई डोंट नो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे या फिर जो भी है, बट पीपल हु यूज टू बी अराउंड मी, जितने भी, दे आर फॉलिंग अपार्ट अगैन. एंड बट दिस टाइम आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू ब्लेम माई सेल्फ, बिकॉज गलतियाँ तो हम सब करते हैं, हम सभी से गलतियाँ होती हैं. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करे और आपको बहुत बुरा फील करवाए आपके खुद के बारे में, एंड आपको एक और चांस ना दे. दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट गुड. सो I just want to tell you all that if you are upgrading in your life, and if you are choosing yourself, and if you are wanting a better future for yourself, a better version for yourself, okay, then just believe in yourself. Just believe कि आप जब अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप जब अपने आप को सबसे आगे रख रहे हो, आप जब खुद पर बिलीव कर रहे हो, तो you will attract those kind of people who will respect that, who will mirror that. You will attract those type of people, opportunities, circumstances, okay. आप बस ये सोचो कि आपके साथ किसी ने बुरा बिहेव किया, उसने आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा बोला, आपके बारे में कुछ ऐसा बोला जो उसको लगता है, या फिर उसने जेलसी में बोला, कंपटीशन में बोला, कैसे भी बोला. अब आप उसकी वजह से अपने वीक्स ख़राब कर रहे हो, आप अपने डेज ख़राब कर रहे हो, आप अपना मोमेंट ख़राब कर रहे हो, बिकॉज आई यूज टू डू दैट, एंड समवेयर आई स्टिल डू दैट, एंड आई डोंट लाइक दैट. कि आप उस सामने वाले के बिलीव की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके ट्रिगर्स की वजह से, क्योंकि मे बी आप बहुत खुश हैं. अब आप सोचिए कि सामने वाले ने आपके साथ कैसा भी बिहेव किया, उसने आपको कुछ भी बोला, उसने कैसा भी आपके साथ आपको कैसे भी ट्रीट किया. अब आप उसकी वजह से नाउ यू आर फीलिंग बैड, आप अपना पूरा दिन ख़राब कर रहे हो, आप अपने वीक्स ख़राब कर रहे हो, आप अपना मंथ ख़राब कर रहे हो, आप अभी तक उसी को पकड़ के बैठे हुए हो. बिकॉज आई यूज़ टू डू दैट, एंड आई यूज़ टू डू दैट अ लॉट, एंड समवेयर आई स्टिल डू दैट, एंड आई डोंट लाइक इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहती हूँ, एंड आई नेवर लाइक्ड इट. राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. कि सामने वाला जैसे भी बिहेव कर रहा है, वो आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है, उसकी वजह से आप इम्पैक्ट मत होइए, आप उसे खुद पे हावी मत होने दो, ठीक है. और आप इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट मत करो, आप इतना ज़्यादा खुद को बुरा ट्रीट मत करो, ओके. एंड डो नॉट ब्लेम योर सेल्फ कि इफ़ सामने वाले ने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, या फिर आपसे ठीक से बात नहीं की, या फिर किसी चीज़ की वजह से वो ट्रिगर हो गया, या फिर कुछ भी, तो ये आपकी गलती है. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, एंड आई एम स्टिल लर्निंग कि गलतियाँ तो हम सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब तो, और मैं इंसान ही हूँ, मैं भी तो गलतियाँ करूँगी ना, मैं भी तो बहुत सारी गलतियाँ करूँगी. बिना गलती के मैं कैसे सीखूँगी. और अगर मैंने ये चीज़ बचपन में सीखी कि गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, और अगर हर हर गलती के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिले थे, तो अब मुझे पूरी लाइफ यही लगता रहेगा कि मैंने गलती क्यों करी, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यूनिवर्स मुझे पनिश कर रहा है, गॉड मुझे पनिश कर रहा है, ये इंसान मुझे पनिश कर रहा है, उसको मुझे पनिश करना ही चाहिए. क्यों? यू डिज़र्व टू बी फॉरगिवन, आई डिज़र्व टू बी फॉरगिवन. हर इंसान को दूसरा चांस मिलना चाहिए, राइट. सो अगर सामने वाला आपके साथ कैसे भी बिहेव कर रहा है, वो आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है, ठीक है. वट आई वॉन्ट टू लर्न इन माई लाइफ राइट नाउ दैट कि उस चीज़ को मैं इतना पर्सनली ना लूँ.
क्योंकि वो जैसे भी बिहेव कर रहा है, वो जो भी सोच रहा है, वो जैसे भी एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है एंड जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वो मेरे से रिलेटेड नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। कभी कभी सच में आपकी गलती होती है, कभी कभी सच में मेरी भी होती है गलती, जो ईगो की वजह से कभी कभी हम उस गलतियों को मानना नहीं चाहते हैं, हम उसे एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, हम सामने वाले पे ब्लेम कर देते हैं। बट जहाँ पे बात होती है कि आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर रहे हो और अगर सामने वाला आपको कोई दूसरा चांस भी नहीं दे रहा है, वो सामने से आके आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है कि उसको क्या चीज़ बुरी लगी है, वो एकदम से आपके ऊपर अग्रेसिव हो गया एंड आपको बुरा ट्रीट करने लगा, आपको कंफ्यूज करके उसने रखा कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाला ऐसा क्यों हो गया। तो ये आपकी गलती नहीं है, उसको आपसे ठीक से बात नहीं करनी, उसको आपको आके कुछ एड्रेस नहीं करना कि उसको क्या चीज़ हर्ट किया, क्या चीज़ अनकंफर्टेबल लगी, क्या चीज़ उसको ठीक नहीं लगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो what I will talk about myself that I would always like someone to come to me and tell me कि उसको क्या चीज़ ठीक नहीं लगी एंड उसको ठीक से एड्रेस करे, ठीक से बताए। एंड अगर उसके बाद भी मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं लाती हूँ तो ये मेरी गलती है, फिर ये मेरा ईगो है कि मैं अपने अंदर चेंजेस लाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अब सामने वाला अगर मेरी लाइफ में रहना चाहता है तो मैं जैसी हूँ वो वैसे ही मेरी लाइफ में रहे, अदरवाइज़ ना रहे। इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी चेंजेस आपको भी अपने अंदर करने होते हैं एंड कभी कभी आपको अपने ऊपर विश्वास करना होता है कि आप जब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप जब एक स्टेप आगे ले रहे हैं, तो अगर पीछे वाले लोग पीछे छूट रहे हैं तो आपको आगे और भी लोग मिल जाएंगे। हर इंसान आपकी लाइफ में लाइफ टाइम तक रहने के लिए नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो हम लोगों को इतना पकड़ के क्यों बैठ जाते हैं कि वो अब और पूरे सपने देखने लगते हैं। बिकॉज आई यूज टू डू दैट अ लॉट। मैं एक दिन किसी से मिली, 2 दिन किसी से मिली, अब पूरा मैंने देख लिया कि अब वो मेरी फ्रेंड बनेगी, अब मैं उसके बाद बाहर जाऊंगी, फिर मैं उसकी शादी में जाऊंगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर ब्ला 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 ब्ला। बट ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइफ नहीं चलती जो मैंने सीखा है अभी। कभी कभी वो इंसान आपकी लाइफ में बस उस पीरियड के लिए आता है, बस उस टाइम के लिए आता है ताकि वो आपको कुछ सिखा पाए, ठीक है, जो आप नहीं सीख पाए। कभी कभी वो आपको हील करने के लिए आता है एंड जब आप उस चीज़ से हील हो जाते हो, आप जब वो चीज़ सीख जाते हो, तो वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है। हर इंसान आपकी लाइफ में पूरी लाइफ तक रहने के लिए तो नहीं आता। तो हम क्यों लोगों को पकड़ के इतना बैठ जाते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रहे। एंड जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, वो इंसान उसको अच्छा नहीं लगता, वो जब आपको पुल बैक करने लगता है तो आप खुद को भी पुल बैक करने लगते हो कि यू शुड नॉट डू दैट। अगर आपने वो किया तो पीछे वाले सारे छूट जाएंगे। लेकिन जो सच में आपके दोस्त होते हैं, क्या वो आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहेंगे कि आप लाइफ में ग्रो करें, आप लाइफ में आगे बढ़ें एंड आप लाइफ में सीखें एंड आप लाइफ में कुछ अचीव करें, आप खुद से प्यार करें, आप खुद को चूज़ करें। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपकी लाइफ में वही लोग हैं जो खुद को कुछ नहीं मानते, जो खुद को कुछ नहीं समझते, या फिर उनमें बहुत ईगो है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर इसको मेरी लाइफ में रहना है तो वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसे मैं हूँ, या फिर जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। On this note, today I'll just complete my video here and I will see you all in my next video. Till then, bye bye and take care. If you like my content, then please do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.